Once again, a very good morning to you all again. I hope you all are learning well. So, today we will be starting with communication skills. So, basically, we have completed previous topics such as effective speaking, tips, use of visual aids, how to put the message across effectively. Some of these topics were there, which we have already discussed. So, after that, we have also seen the characteristics of a good speaker. All right. So it was been conducted during the live lecture when you have visited the college. So today I will be continuing with the characteristics again. Okay. So what should be a characteristic of a good speaker? Okay. एक good speaker हम किसे बोलेंगे? That is what it is trying to say. So a good speaker or a presenter is lively, enthusiastic, interested in the topic and considers it vital to the audience and so speaks with enthusiasm. Okay. इट मीन्स दैट अगर एक गुड स्पीकर है तो हम उसको उसके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो अपने टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका रोल काफी इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग द ऑडियंस, ऑल्सो द ऑडियंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट जिसे उसको कंसिडर करना होगा। दूसरा, उसके अंदर फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए स्पीच देने के लिए. सो दिस आर द few characteristics. The second characteristics has a sense of responsibility to the audience and tries to say something that will be worth the listener's time. इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक गुड स्पीकर है तो हम किसी गुड स्पीकर बोलेंगे जिसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ऑडियंस की, जिसके पास ये सेंस हो कि व्हाट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द ऑडियंस and tries to say something that will be worth the listener's time. Okay, it means कि उसको पता होना चाहिए कि सामने ऑडियंस जो है उसका टाइम जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐसी चीजें बोले जो उनको वर्थ इट लगे. Okay, has a sense of responsibility to the others in the program, and if allotted 5 minutes does not squeeze other of the program by taking 10 minutes. Definitely yes, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि एक गुड स्पीकर हम किसे बोलेंगे जिसको पता हो कि मुझे अगर 5 मिनट्स के अंदर प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो वो 5 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि वो 10 मिनट्स ले ले, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है. ओके, डू नॉट स्ट्रेच द टॉपिक. ओके, जो टाइम अलॉट किया है उस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए. Shows respect for what they may have to say. Definitely, they should have some of the respect. All right. Next point is has sense of responsibility to the subject, does not speak on something he does not know. Okay, इसका मतलब ये होता है कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जिसके बारे में वो स्पीच देने वाले हैं, कि उनको ये नहीं बोलना है जिसके बारे में उनको पता नहीं हो. राइट, अगर मुझे जो चीज पता नहीं है, आई डेफिनेटली कैन नॉट से समथिंग अबाउट दैट. All right. Has sense of leadership, stands tall, makes eye contact, speak responsibly and with authority, is positive, friendly and straightforward. This is also very much important. उनके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए, उनका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबली बोलना है, उनके पास अथॉरिटी होगी तो उनको काफी पॉजिटिव रहना है, फ्रेंडली रहना है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है. सो दिस आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच अ स्पीकर शुड keep in mind. All right. Next is keeps head on shoulders, does not let the confidence turn into overconfidence. इसका मतलब ये होता है कि खाली स्ट्रेट खड़े रहने से कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. एंड यू शुड एक्सेप्ट द फीडबैक्स एंड बेनिफिट बाय इट. ऑलराइट, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर हमें कोई फीडबैक मिल रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों को ही हमें पॉजिटिवली लेना है. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर स्पीच इन फ्यूचर. दैट्स व्हाई a good speaker or presenter should prepare thoroughly for the subjects of his presentation, relax before presentation, adopt a posture which looks friendly, maintain a good eye contact, pronounce the words very clearly, and there should be enough pauses at the appropriate places. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. राइट, सो एक सब्जेक्ट के लिए उनको काफी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, काफी रिलैक्स रहना है प्रेजेंटेशन से पहले, उनको एक अच्छा सा पोस्चर मीन्स यू शुड हैव अ गुड body contact with the
people sitting in front of you. You should have a very good eye contact with them. आपको जो pronounce करने हैं words, it should be very much clear. Every places at intervals there should be a pause taken between the sentences, जिससे सामने वाले को समझ में आए that what you are trying to say. Respect the audience and their intelligence. Answer the question sincerely and should not dismiss the questions. Above all, take the talk sincerely. ऑल राइट, ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना, उनकी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना, क्वेश्चंस को आंसर अगर करना है तो आप सिंसियरली करोगे, क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करोगे. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट इग्नोर any of the questions asked by the audience. And last but not the least, you should talk sincerely. All right, you should be very much sincere enough. Here is the answer. You can add certain points from the short note body language of the speaker. Yeah. So if the question has been asked for the short note that describe the body language of a speaker, तो आप ये points जो है वो list out कर सकते हो. Okay. Moving on. Now, importance. What is the importance? So the importance is to understand a subject or topic area more deeply, to explore ideas, to exchange information, to expand and clarify your knowledge, to improve your ability to think critically, to improve your language skills, to increase your confidence in speaking. A discussion can change your attitudes and ideas. A discussion can help a group make a particular decision or come to a conclusion. A discussion gives you the chance to hear the thoughts and ideas of the other people. These are some of the important things which we need to remember of about discussion skill. So basically, here we have completed the characteristics of a good speaker, which was starting from here and it is ending up over here. All right, now we have started with the discussion skills. So what are the importance of the discussion skills? तो वही हमने यहाँ पे रीड आउट किया कि हमें सब्जेक्ट को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, काफी डीपली अंडरस्टैंड करना है, हमें हमारी आइडियाज को एक्सप्लोर करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, आपकी नॉलेज को एक्सपांड करो, उसको क्लैरिफाई करो. इट मीन्स यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. आपको आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज करनी है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करनी है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होना चाहिए, आपके आइडियाज और एटीट्यूड्स आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशन. यू हैव टू हेल्प द पीपल in the group to make a particular decision और वो ताकि वो कोई conclusion पे आ सके. Also discussion gives you the chance to hear the thoughts and ideas to the other people. So these are some of the importance of discussion skills. Moving on, what are the strategies for improving the discussion skills? So how can a discussion skills be improved? Okay, so first is observe. Okay, attend as many seminars and tutorials as possible and notice what the other people do. Ask yourself. It means जितना हम ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना बेटर हमें समझ में आएगा कि हाउ कैन द डिस्कशन स्किल्स बी इम्प्रूव्ड. ऑलराइट, आप नोटिस करो कि कैसे the other people are having that skill. Try to attend more and more seminars. Okay, seminars attend करने से क्या होगा? You will have a better knowledge about it. All right. Next, हाउ डू अदर पीपल एंटर इनटू डिस्कशंस. इसका मतलब जब डिस्कशन चल रही हो तो कैसे कोई और पर्सन जो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो कैसे सडनली कोई भी क्वेश्चन रेज करता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. नाउ दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब आप सेमिनार या प्रेजेंटेशन अटेंड करते हो तो वी हैव डाउट्स, लेकिन हमारे में वो गट्स नहीं होते हैं कि हम स्टैंड लेके इफ वी आस्क सम क्वेश्चंस, राइट. सो ये हमारे में नहीं होता है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू लर्न कि कैसे दूसरे लोग एंटर होते हैं डिस्कशन के अंदर एंड दे रेज अ क्वेश्चन. ओके, हाउ डू दे आस्क द क्वेश्चन, हाउ डू दे डिसएग्री विद और सपोर्ट द टॉपिक. अगर समझो कि कोई टॉपिक चल रहा है जिसके लिए आपने पढ़ा था एंड द टॉपिक से समथिंग लाइक कि इन अपोजिट वे व्हाट यू हैव लर्नड, राइट, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कैसे डिसएग्री करोगे, राइट. तो वो भी एक चीज हो जाती है कि आप कैसे बोलोगे. सो दैट एट दैट मोमेंट यू कैन बी रूड. आपको काफी पोलाइट होना पड़ता है उस टाइम पे. हाउ डू दे मेक क्रिटिकल कमेंट्स. अगर कोई कमेंट करनी हो उस डिस्कशन को लेके तो वो कैसे करते हैं वो भी देखना है. What special phrases do they use to show politeness even when they आर वॉइसिंग डिसएग्रीमेंट. इसका मतलब अगर मैं कोई स्टेटमेंट से डिसएग्री करती हूँ तो उस टाइम पे मैं कैसे उस पर्टिकुलर
स्टेटमेंट को मैं फ्रेज करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, मुझे उस टाइम पे पोलाइटनेस शो करनी पड़ेगी. ओके, हाउ डू दे सिग्नल टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक अ पॉइंट. इफ आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन इन बिटवीन द डिस्कशन, तो वो मैं कैसे करूंगी. सो आई नीड टू रेज my hands, or I can just pause somebody, I can let somebody to get completed their sentences and then I can ask the question. तो इस तरह से हो सकता है. So these are the major questions for the discussion skills which we need to focus on. उसके बाद ही we can go for the discussions. So सबसे पहला point जो है, that is learn to discuss. This is very important point. अगर आपकी listening skills better होगी तो definitely you are going to rock in discussion skills. All right. So listening is an essential skill and an important element of any discussion. Effective listeners don't just hear what is being said, they think about it and actively process it. Okay. लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्कशन के लिए. और इफेक्टिव लिसनर जो होता है वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो सोचते भी है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं. सो बी एन एक्टिव लिसनर एंड डोंट लेट योर अटेंशन ड्रिफ्ट. Stay attentive and focus on what is being said. Identify the main ideas being discussed. Evaluate what is being said. Think about how it is relates to the main idea theme of the tutorial discussion. Listen with an open mind and be receptive to new ideas and points of view. Think about how they fit in with what you have already learned. Test your understanding. Mentally paraphrase what other speakers says. Uh, ask yourself questions as you listen. Take notes during speeches about things to which you could respond. Okay. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको काफी अच्छे से सुनना है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं. उन्होंने कोई अगर आइडिया शेयर किए तो आप उसको नोट डाउन करो. यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया. ट्राई टू गो इन डीप इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग. मेंटली आप अपने ही दिमाग में स्पीकर जो बोल रहा है उसके फ्रेजेस क्रिएट करते जाओ. अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखो. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. Next, after listening skills, you need to prepare. Okay, you can contribute to a discussion unless you are well prepared. आप discussion में तब तक नहीं जा सकते हो जब तक आप mentally prepared नहीं हो. Mentally and actively going in the discussion for a particular topic, उसके लिए आप research करके जाओ. Attend lectures and make sure you complete any assignment, readings or tutorial assignments. If you don't understand the material or don't feel confident about your ideas, speak to your tutor or lecturer outside of क्लासेस. का मतलब आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कोई भी ट्यूटोरियल लेक्चरर को आप पूछ सकते हो, सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया. क्योंकि डिस्कशन तभी होता है जब आपको उसके बारे में पता हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर द डिस्कशंस. फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा. तो प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कोर्स मटेरियल, ओपिनियन क्या हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट द कोर्सेज, और आपको अच्छे से लिसन, यू हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग. और रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके बारे में आपकी वोकेबलरी और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ओके, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स. ओके, यू हैव टू बी फॉर्मल इनफ. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट. सो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे. सो यू नीड टू पार्टिसिपेट वेल, राइट. एंड आप ये सोच के करो कि आपको कंट्रीब्यूट करना है विद अ वेरी गुड थिंग्स. एन इजी वे टू पार्टिसिपेट इज टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग डिस्कशन. पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, जब डिस्कशन चल रहा हो इन बिटवीन ऑफ दैट आप बीच में बोल सकते हो. सो आप कैसे करोगे? स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल कंट्रीब्यूशन. तो आप डायरेक्टली तो जंप नहीं कर सकते हो, तो आप छोटे कंट्रीब्यूशन करो. जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि एग्री विद व्हाट समवन हैज सेड. आस्क देम टू एक्सपांड ऑन द टॉपिक. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स पूछो सामने वाले से. क्वेश्चन प्रिपेयर करो जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्या पूछना है. देन यू कैन देन वर्क अप टू आंसरिंग अ क्वेश्चन पुट टू द ग्रुप. ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन रेज हुआ है तो आप उसका आंसर दो. आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करो आपके पॉइंट के हिसाब से. जब डिस्कशन चल रहा हो तब आप अगर पॉइंट को डिसएग्री कर रहे हो तो आप उसके बारे में बताओ. नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? So to argue in an academic context is to put forward an opinion through the process of reasoning supported by evidence. Argument का मतलब क्या होता है? Basically, some of the people understand that argument is something which we fight. Right? It is not something like fighting. It is about कि मैं अपना opinion मेरे तरफ से रख रही हूँ. I am providing a reason. ओके, जिसका मेरे पास प्रूफ है कि नहीं, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग.
right? So that is argument, that you are sharing your opinions for some particular topic. The argument attempts to pursue it through rational and critical judgments. आर्ग्यूमेंट के बाद एक पर्टिकुलर जजमेंट पे आना होता है इन एकेडमिक राइटिंग. आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होता है, क्लेम और थीसिस स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो सपोर्टेड विद एविडेंस. ओके, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक क्लेम है जो हम लोग बोल सकते हैं कि एविडेंस के साथ आए. इफ आफ्टर दैट वी कैन कम टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट स्टेटमेंट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट. Everyday meaning of the term argument suggests it a fight. जनरली हम, मैंने जैसे कहा कि वो एक फाइट कंसिडर की जाती है, और एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट और कन्फेडरेशन बिटवीन एडवाइजरीज वेयर वन ट्राइज टू डोमिनेट द अदर इन ऑर्डर टू विन. एट यूनिवर्सिटी दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट. इसका मतलब जनरली आर्ग्यूमेंट को क्या कंसिडर किया जाता है, दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वह लोग फाइट कर रहे हैं और एट द एंड वो सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी. So that is not an argument. Argument is something where you are putting up your stand. Okay, so the aim of academic argument is to explore a question, a proposition, or an area of knowledge and achieve reasoned mutual understanding. It is not important who wins. What matters most is the quality of argument itself. When you engage in academic argument in your tutorial discussions, you are developing your ideas, advancing and clarifying your ideas, and learning to think critically. Voicing an opinion in seminar. So what does it is trying to say कि argument का मतलब जो मैंने आपसे कहा, you are sharing your knowledge and ideas and you are trying to let somebody understand कि what exactly you are trying to say about a particular discussion. That is all what it is trying to say. Okay, so voicing an opinion in a seminar we will be seeing in the next video. I hope it was clear to you. One more important thing, आपको यहाँ तक पूरा complete लिखना होगा in your prescribed notebooks. और ये मैंने आपको काफी पहले send कर दिया था to complete it up. I hope you all have written it well. और जिसका हो गया है वो आप मुझे फोटो क्लिक करके ग्रुप में forward करेगा. All right. Thank you. Have a very nice day.